Hello dear students, good morning everyone, warm welcome to you all of you in this video session। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। आज वो इंट्रोडक्शन के रैपिड रिवीजन के साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइला पढ़ने वाले हैं। As you know, there are more than 1.25 lakhs of different species of animals on this planet Earth। मतलब हर एक एनिमल अगर हम काउंट करें तो बहुत ज्यादा मिलियंस में है, राइट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एनिमल एंड टू प्लेस all these animals in their systematic position, there is a need for classification that also we studied. Basis for classification of animal kingdom, all these points also we studied about levels of organization, symmetry, coelom, germinal layers, and all these body cavity coelom, segmentation, and about chord, notochord, right? So basic fundamental features in most animals or all of these animals are common, and depending upon these common fundamental features, these animals are classified in different phyla. There are about 30 different phyla all over the world on this earth, of which 11 are major phyla and rest all are minor phyla. तो 11 मेजर फाइलम हम पढ़ने वाले हैं और पूरे ये 11 मेजर फाइलम में ये कॉमन फंडामेंटल फीचर्स है। किंगडम एनिमालिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, बेसिक फंडामेंटल फीचर्स। जैसे कल मैंने बताया, सबसे पहला फंडामेंटल फीचर है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो डिफरेंट एनिमल शोज डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, tissue level of organization, organ level of organization, organ system level of organizations. Of these levels of organization, there are different types of animals. Some animals are simplest multicellular animals showing cellular level of organization, and these animals are mostly asymmetrical animals। मतलब जितने एनिमल्स है पोरीफेरा फाइलम के, उनके बेसिक फीचर्स, कॉमन फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या है। पोरीफेरा के जो एनिमल्स है, ऑल दीज एनिमल्स शोइंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर शोइंग असिमेट्री। These are diploblastic animals, that means body cells are arranged in two different layers. All these are acoelomate animals. ये basic fundamental features है। Then another is about tissue level of organization. Some animals are slightly evolved, जैसे phylum number 2 and 3, that is animals belonging to phylum Coelenterata and Ctenophora usually shows tissue level of organization and even organ level of organization. In these animals, actually these animals shows radial symmetry. All the animals belonging to phylum Coelenterata usually shows radial symmetry, even some animals of Ctenophora, and these are also acoelomate animals. That means there is no body cavity between body wall and gut wall, so acoelomate animals। जैसे कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, पहले 4 फाइला acoelomate है, 5वां फाइलम स्यूडोसीलोमेट है, और छठे फाइलम से आगे पूरे जो एनिमल्स है वो सीलोमेट एनिमल्स है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट organ system. Organ and organ system level of organization is commonly found. Organ level of organization is found in animals belonging to phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes में organs develop हो गए, लेकिन सिस्टम पूरी नहीं है, सिस्टम पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके कारण यहां पे हम इसको बोल सकते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 5वें फाइलम से आगे पूरे एनिमल्स इंक्लूडिंग कॉर्डेटा शोइंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शोज वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी पैटर्न और बॉडी प्लान, like
ब्लाइंड सैक पैटर्न एंड ट्यूब विद इन द ट्यूब पैटर्न। तो ब्लाइंड सैक पैटर्न दिखेगा, 4 नंबर का फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस shows these animals shows blind sac pattern with incomplete digestive system. Rest all animals are showing complete digestive system, right? Then about symmetry, रेडियल सिमेट्री, ये पूरे एनिमल्स में सिलियंट्रेटा, टेनोफोरा यूजुअली शो रेडियल सिमेट्री। एंड यहां पे जानबूझ के मैंने रेड कलर में आपको रिप्रेजेंट किया है, ये भी जो एनिमल्स है इकाइनोडर्मेटा आल्सो शोइंग रेडियल सिमेट्री। इसमें थोड़ा टिपिकल फीचर है, बाद में फाइलम के टाइम पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। Because their larval stage shows bilateral symmetry and adult shows radial symmetry, ये बाद में आपको समझ में आएगा। Then about bilateral symmetry, तो ये जो भी एनिमल्स है प्लैटीहेलमिन्थस, एस्कीहेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा का larval stage and hemichordata, all these animals are showing bilateral symmetry. So this is everything about symmetry. Also I explained about body cavity. Now phyla, there are 11 major phyla. phylum sequence के हिसाब से आपको learn करना है। तो पहला असाइनमेंट एग्जाम्पल्स, ये चैप्टर पूरा एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करना है बच्चों। एग्जाम्पल नहीं है तो फ्लॉप। आपको आज से इतना एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है और ये लर्निंग मैकेनिज्म है। ये एनिमल्स के ऐसे कुछ नाम आप सुनोगे कि जो आपने पहले कभी सुने नहीं है। बायोलॉजिकल नेम्स आएंगे, कॉमन नेम्स आएंगे, आपको दोनों लर्न करना है। मैच द कॉलम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? सो पहले 10 फाइलम जो है ये नॉन कॉर्डेट्स है, और ये एक फाइलम हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा, और इसके आगे पूरे कॉर्डेट एनिमल्स। So depending upon presence or absence of notochord, that is dorsal supporting rod, animals are classified in two major groups, two major phyla. These are non-chordata, main two groups, and chordata. तो non-chordata के 10 फाइलम, पहले 3 फाइला है। पोरीफेरा फाइलम, पोरीफेरा simplest multicellular animals. Phylum Coelenterata, these are also simplest multicellular animals showing tissue level of organization. Phylum Ctenophora are also simplest multicellular animals. All these 3, ये तीनों फाइलम के जो एनिमल्स है ना, ये एक्वाटिक एनिमल्स है, एक्सक्लूसिवली मरीन, बहुत ज्यादातर ये मरीन वाटर में रहते हैं, राइट? देन अगले 3 फाइला जो है उनमें से 2 वर्म्स है, वर्म्स प्लैटीहेलमिन्थस 4 नंबर का फाइलम, और फाइलम नंबर वाइज सीक्वेंस है, आपको ध्यान में रखना है। फाइलम नंबर 4 प्लैटीहेलमिन्थस फ्लैट वर्म्स, these are flat worms, and phylum Aschelminthus, these are round worms, flat worms, round worms, clear? तो ये पहले 5 फाइलम हो गए। फाइलम नंबर 6 Annelida, these are segmented animals. ये एनिमल्स में होती है मेटामेरस सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मतलब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। जैसे अभी रेनी सीजन है ना, तो काफी बार हम अर्थवर्म्स देखते हैं। अर्थवर्म, लिच के जैसे जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी के ऊपर ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे ग्रू होते हैं, सेगमेंटेशन। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, पूरे जितने भी इंसेक्ट है सब में लार्जेस्ट फाइलम अगर कोई है एनिमल किंगडम में तो ये आर्थ्रोपोडा, फाइलम नंबर 7 आर्थ्रोपोडा। फाइलम 8 मोलुस्का, दीज आर सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल्स, सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल्स। फाइलम नंबर 9 इकाइनोडर्मेटा, क्यों लिखा है रेड कलर में, क्यों लिखा है, क्यों? तो 1 2 3 ये 4 और ये 5, बाकी पूरे जितने सिलोमेट है ये दीज ऑल एनिमल्स आर शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा एडल्ट एनिमल शोइंग रेडियल सिमेट्री, और यू मे से इट एज बायरेडियल सिमेट्री और लाइक अ पेंटामेरस सिमेट्री। सिमेट्री अलग है इसलिए अलग से रिप्रेजेंट किया है। एंड देन फाइलम नंबर 10 हेमिकॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेट्स। So all these are included in non-chordata, and next phylum is phylum Chordata. Clear?
Now basically try to understand what exactly differentiating points between non-chordates and chordates. अब मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको रनिंग नोट्स लिखना है जो कि बुक में ज्यादातर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स में नहीं दिया है, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट अबाउट नॉन-chordates. नॉन-chordates ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है, क्लियर? वाइल कॉर्डेट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड होता है, बैक साइड में रॉड, कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड. सो फर्स्ट पॉइंट, non-chordates are the animals that do not possess notochord, while chordata are the animals having notochord. These animals possess notochord. अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी नॉन कॉर्डेटा होते हैं, नॉन कॉर्डेटा में अगर हार्ट होता है, आपको पता है आपका हार्ट कहां पे है? राइट, सामने से हाथ जाता है ना, राइट? मेरा दिल, सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, अगला नहीं बोलना, लेकिन फ्रंट साइड से बोलते हैं हार्ट. वैसे ये एनिमल्स में अगर हार्ट होता है तो बैक साइड से होता है, पीछे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है. In non-chordata, heart if present, हर एनिमल में हार्ट होगा ऐसे कंपलसरी नहीं है, ये तो सिंपलेस्ट एनिमल्स है ना, इनमें हार्ट होता भी नहीं है, लेकिन यहां से अगर हार्ट है तो हार्ट कहां पे होता है? डॉर्सल साइड में, ये आपको ध्यान में रखना है. In non-chordata, heart if present, it is always dorsal in position. In chordata, हार्ट इज ऑलवेज वेंट्रल इन पोजिशन. ये एनिमल्स में हार्ट वेंट्रल पोजिशन में होता है, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसका अपोजिट नर्व कॉर्ड, मतलब जैसे स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा ब्रेन से निकला हुआ और बैक साइड से जा रहा है ना, वैसे कुछ एनिमल्स में नर्वस सिस्टम का नर्व कॉर्ड होता है. नॉन कॉर्डेट एनिमल्स में अगर नर्व कॉर्ड है तो वेंट्रल साइड से होते हैं, लेकिन कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड से होते हैं, हार्ट का अपोजिट पोजीशन. सो इन नॉन कॉर्डेटा नर्व कॉर्ड्स, इन नॉन कॉर्डेटा nerve cords are ventral in position and ganglionated. So nerve cord are paired, ganglionated and ventral in position, while in chordata nerve cord is dorsal and tubular. Nerve cord is dorsal and tubular. Next important point about pharyngeal gill slits. फारिंग्स आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा है, क्लियर? या तो जो भी बच्चे ह्यूमन न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपने पढ़ा है, तो हमारे यहाँ गले में फारिंग्स और लैरिंग्स होते हैं. फारिंग्स कंटिन्यू इनटू इसोफेगस, फारिंग्स के छेद होता है, राइट? मतलब रेस्पिरेटरी ट्यूब और डाइजेस्टिव ट्यूब ऐसे सेपरेट होती है इसोफेगस और ट्रेकिया में. तो वैसे फारिंग्स में छेद अगर है तो दैट आर कॉल्ड फारेंजियल गिल स्लिट्स, राइट? तो ये जो एनिमल्स होते हैं नॉन कॉर्डेटा, इनके फारेंजियल गिल स्लिट्स नहीं होते हैं. सो दीज एनिमल्स डू नॉट शो फारेंजियल गिल स्लिट्स. इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हैं फारिंग्स इज नॉट परफोरेटेड बाय गिल्स और गिल स्लिट्स. फारेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट. इन कॉर्डेटा फारेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. और एक एडिशनल फीचर भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं यहां पे होती है पोस्ट एनल टेल. पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट. यहां पे पोस्ट एनल टेल का कोई रेफरेंस नहीं है. और बाकी ऑल दिस एग्जांपल्स ऑफ वेरियस फाइलम इंक्लूडेड इन नॉन कॉर्डेटा आर पोरीफेरा टू हेमीकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में अलग अलग क्लासेस है. सो दीज आर मेन बेसिक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. अब यहां से शुरू हो रहा है चैप्टर एनिमल किंगडम, क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा. सो राइट नाउ फर्स्ट फाइलम अबाउट फाइलम पोरीफेरा.
सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है बच्चों कि ये फाइलम पोरीफेरा में जितने एनिमल्स है दीज आर सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एक्वाटिक एनिमल्स. मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन, few of them also found in fresh water. लेकिन पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये मल्टी सेलुलर सिंपलेस्ट एनिमल्स है, इनमें कोई भी टिश्यू नहीं है, ऑर्गन नहीं है, केवल सेलुलर एग्रीगेशन है. सो दे शोज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, दैट मीन्स बेसिस फॉर एनिमल किंगडम, सबसे पहले हर एक फाइलम में उसको हमको अप्लाई करना है. उसके बाद में जो भी स्पेशल फीचर्स है उसके ऊपर फोकस करना है. और सबसे लास्ट में और बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है हर एक फाइलम में वो एग्जांपल्स. एग्जांपल्स लर्न है, याद है, डायग्राम आपको याद है तो चलेगा, नहीं तो नहीं. ये चैप्टर ऐसा है कि इसके ऊपर आपको नीट में 3 से 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं. दैट मीन्स दिस एंटायर चैप्टर इज फॉर 16 टू 20 मार्क्स. 16 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चैप्टर है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा. So phylum Porifera includes all simplest multicellular aquatic animals. Especially all these animals of phylum Porifera are called sponges. So these are commonly called sponges. Sponge देखा है आपने sponge. आज एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप. अगर आपके घर में सोफा सेट है, राइट, या तो आपके बाइक पे सीट होता है, सीट कवर निकालो, सोफा सेट का कवर चेन से निकालो, उसका कुशन का कवर निकालो, कुशन को फाड़ो फाड़ो फाड़ो, क्या निकलेगा? स्पंज. और वो देखो, उसको ऑब्जर्व करो, उसमें क्या होते हैं, बारीक 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 छेद होते हैं, छेद. वो ये एनिमल है, ऐसा एनिमल कि जिसकी बॉडी के ऊपर ओनली सेल 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 एंड पोर 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 है, बाकी नो टिश्यू, नो ऑर्गन, नो सिस्टम. दीज एनिमल्स कंसिस्ट thousands of different types of cells. बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है. क्लियर? मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन, फ्यू ऑफ देम आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर. सबसे पहला पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. These animals shows cellular level of organization, that is cell aggregate pattern. Body shows cell aggregate pattern or cell aggregate plan. Now symmetry. बहुत सारे एनिमल्स में सिमेट्री जो होती है asymmetrical होती है, but some of the sponges are vase shaped. vase होता है ना, vase, flower pot. फ्लावर पॉट में अगर आप सिमेट्री देखोगे तो रेडियल दिखती है, तो एक्सेप्शनल केस में रेडियल सिमेट्री होती है. अदरवाइज ऑल एंड मोस्ट ऑफ दीज एनिमल शोज असिमेट्री. सो दीज आर असिमेट्रिकली एनिमल्स. देन जर्माइनल लेयर्स बुक में तो दिया नहीं, आप ध्यान में रख सकते. दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. क्लियर? बॉडी शोज 2 germinal layers such as ectoderm and endoderm. Coelom, ये एनिमल्स की बॉडी में कैविटी नहीं है. कौन सी कैविटी? कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम. सीलोम नहीं है, सो दीज आर असीलोमेट एनिमल्स. लेकिन साइड बाय साइड यहां पे एक सीलोम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, नॉट सीलोम. द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील. फिर आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला बॉडी कैविटी नहीं है, अभी आप बोल रहे बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील. तो सीलोम का मतलब समझ लो, सीलोम मतलब डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है. सीलोम का मतलब क्या है? बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में स्पेस, वैसा स्पेस नहीं होता है. इनके डायरेक्ट अंदर में ऐसे एम्प्टी स्पेस होता है, बॉडी के अंदर एम्प्टी स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील. सो बॉडी कैविटी इन पोरीफेरा स्पॉन्जस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील. ये आपको नीट में क्वेश्चन पूछते हैं तो ध्यान में रखना है. अब हम जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ. ये जो एनिमल है, दीज एनिमल्स, एडिशनल पॉइंट बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना. दीज एनिमल्स शोज सीडेंटरी हैबिट्स.
दे यूजुअली डू नॉट शो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये एनिमल्स ज्यादातर डीप वाटर में या तो कोई भी ऐसे सबमर्ज पार्ट को ऐसे अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, लाइक प्लांट्स। तो लोकोमोटरी मूवमेंट्स नहीं होते हैं। वन एंड इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम व्हाइल अनदर एंड इज फ्री। In these animals, sponges, usually one end is attached to the substratum, मतलब कोई भी substance यहाँ पे attached है animals, while at the free end, animal shows a larger opening called as oscula, and the entire body shows many small pores called as ostia. ऑस्क्यूला एंड ऑस्टिया ये बॉडी पोअर्स है। सो ऑन द बॉडी ऑफ ऑल दीज एनिमल्स और स्पॉन्जेस एट द फ्री एंड देयर इज अ लार्जर ओपनिंग कॉल्ड एज ऑस्क्यूला एंड मेनी स्मॉल पोअर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। अब ये क्यों है? इनमें से स्पेशल वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर यूजुअली एंटर इनटू द बॉडी थ्रू ऑस्टिया। ऑस्टिया से, ये देखो इधर, ये जो छोटे छोटे पोर्स है ना, यहां से पानी अंदर अंदर आएगा। वाटर एंटर इनटू द बॉडी थ्रू ऑस्टिया इनटू द बॉडी कैविटी। अब पानी पूरा ये बॉडी कैविटी में जाएगा इनटू स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील में अलग अलग सेल्स है। जो भी पानी वाटर इनकी बॉडी में जाएगा वो वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल अब्सॉर्ब कर लेंगे, जो फूड मटेरियल्स है वो अब्सॉर्ब कर लेंगे, जो ऑक्सीजन है वो अब्सॉर्ब कर लेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज कर देंगे स्पॉन्जोसील में। फिर ये पानी यहां से बाहर आएगा। तो ये जो है पूरा, दिस इज कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सो द पिक्यूलियर फीचर, the characteristic feature of this phylum Porifera is the presence of water transport system or water canal system, in which body shows larger pores called oscula and many small pores called ostia. Water enter into the body through ostia into the body cavity spongocoel, which is lined by different types of cells, and then released out through oscula. And this transport of water across the body or this body cavity is called water transport system or water canal system. It's a very important point. अब ये होता क्यों है? Why? What is the need of water transport system? Water transport system, water vascular system is developed for gathering of food, food gathering, food collection, respiratory exchange, gaseous exchange, and also for removal of waste material. पानी जैसे ऑस्टिया में से अंदर जाएगा, स्पॉन्जोसील कैविटी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। So in the body of these animals, the spongocoel cavity is lined by some specialized cells called as coinocyte cells or collar cells. Coinocyte cells or collar cells are specially designed for the purpose of all these exchange, food materials, gaseous exchange, and removal of waste material. And then water is released out through oscula. So this water transport system is for this purpose. Clear? Now specialized cells भी आपको ध्यान में रखना है। In the body of these animals there is no tissue, organ or organ system level of organization, but there are thousands of different types of cells. Some of the specialized cells are located in the linings of the spongocoel cavity are coinocytes or collar cells. तो collar cells, अभी यहाँ पे आप देखोगे collar cell, एक सिंगल collar cell, राइट? ये collar cell क्या करती है? collar cell फूड एब्जॉर्ब करती है और अंदर का अंदर डाइजेशन होता है। बच्चों, आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पक्का आना चाहिए What are various types of digestion? चलो मैं ही बोल देता हूं। There are two types of digestion, extracellular digestion and intracellular digestion. कौन से टाइप से? Extracellular digestion and
इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बोलो बच्चा, आपकी बॉडी में कौन सा डाइजेशन होता है? बोलो 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 बोलो। इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ? आहा, कंसेप्ट क्लियर करो। हमारी बॉडी में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर नहीं। क्यों? तो डाइजेशन के बाद में फूड ब्लड में जाके फिर सेल में जाता है ना। 5 स्टेप पढ़े हैं ना अपने न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन है। क्लियर? यहां पे ऐसे होता है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डायरेक्टली डाइजेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी जगह पे निग्लेक्ट किया जाता है, मैं आपको फोकस करके बता रहा हूं, ध्यान में रखना है। सो इन ऑल द स्पॉन्जेस डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। ये एनिमल्स ना ज्यादातर ओशियन मतलब समंदर में होते हैं, सी वाटर में होते हैं, तो बॉडी के ऊपर ऐसे उनको सपोर्ट के लिए कुछ हार्ड पार्टिकल्स चाहिए। तो इनके पूरी एंटायर बॉडी के लिए सपोर्ट करने के लिए हार्ड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, दैट वी मे कॉल इट एज skeleton. So skeletal support is in the form of specialized cells called as spongine spicules. Spicules or spongines are forming skeleton support in all these animals. अब आते हैं ये एनिमल्स के रिप्रोडक्शन की ओर। ये एनिमल्स में रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गेम्यूल फॉर्मेशन। आगे आपको रिप्रोडक्शन में हो जाएगा, या तो सिंपल टाइप बोलता हूं, फ्रैगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by fragmentation and sexual reproduction takes place by gamete formation, right? इसके साथ में ये जो एनिमल्स है, ये in these animals sexes are not separate, these are hermaphrodites। ये वर्ड मैंने टिपिकली मार्क किया है, आगे भी आपको आएगा। hermaphrodites का मतलब होता है बाइसेक्सुअल एनिमल्स, जो एनिमल्स के अंदर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। मेल and female, both the gametes are produced by single animal, at that time it is called bisexual animal or hermaphrodite। तो आपको ध्यान में रखना है, all the animals belonging to phylum Porifera do not have separate sexes, these are hermaphrodite animals or bisexual animals। reproduction takes place by both asexual reproduction by fragmentation and also budding भी होता है इसमें, and sexual reproduction takes place by gamete formation, right? fertilization is internal, अंदर का अंदर fertilization होगा, fertilization is internal and development is indirect। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट का मतलब इनका जो पिल्लू आएगा, पिल्लू बेबी, राइट, वो बेबी मतलब लार्वा इज डिस्टिंक्ट देन द एडल्ट, एडल्ट से लार्वा अलग होगा। सो दिस इज डेवलपमेंटल पार्ट एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। So these are most important characteristic features of all the animals belonging to phylum Porifera। आज का सबसे important assignment examples। Sponges में example Sycon। Sycon is known as Scypha, common name is Scypha, biological name Sycon। Spongilia, Spongilia, freshwater sponges and Euspongia, bath sponge। आपको मैच द कॉलम में पूछते हैं, ये लर्न करना पड़ेगा। अभी से आप लर्न करते जाओगे ना तो 10 फाइलम और बाकी और 5-6 कॉर डाटा, तो पूरे हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? क्यों? तो ये चैप्टर पूरा एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करना है, और एग्जाम्पल्स अगर आपको टिपिकली याद में रहेंगे तो आसान जाएगा। सो दिस 3 एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद डायग्राम्स। आज का असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट ऐसा है, आपको रजिस्टर में सबसे पहले मैंने पहले जो चार्ट यहाँ पे दिया था वो फ्लो चार्ट आपके बुक में भी दिया है, उसको स्केच करना है। दैट इज क्लासिफिकेशन और बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम।
ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, वो एक पार्ट। दूसरा 10 फाइलम के नेम्स एंड नेम्स, 10 फाइला, उसके नेम और एग्जाम्पल ढूंढ के लिखो, ये दूसरा असाइनमेंट। तीसरा असाइनमेंट आपको फाइलम पोरीफेरा हेडिंग लिखना है स्पेशल पेज पे रजिस्टर में। पोरीफेरा के 3 एग्जाम्पल्स लिखना है, लर्न करना है कॉमन नेम्स के साथ। एक कोई भी डायग्राम स्केच करना है जो आपको अच्छी आती है, और इसके मिनिमम 10 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको रजिस्टर में लिखना है। लिखने के बाद उसका फोटो शूट करना है, फोटो निकाल के मुझे ऐप में सेंड करना है। सर लुक एट दिस इज माय असाइनमेंट। समझ में आ गया? असाइनमेंट वापस रिवाइज कर रहा हूं, 3 असाइनमेंट्स है। फर्स्ट, इसके पहले वाला जो फ्लो चार्ट मैंने स्केच किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, उसका टेबल, येलो कलर का टेबल दिया है बुक में, राइट। दूसरा, ये जो 10 फाइला है, 10 फाइला का सीक्वेंस पूरा लिखना है आपको और लर्न करना है। तीसरा, फाइलम पोरीफेरा, ये हेडिंग लिखना है आपको, 3 एग्जाम्पल्स लिखना है, एक डायग्राम स्केच करना है, और इतने पूरे पॉइंट्स, मतलब इससे भी ज़्यादा और एडिशनल पॉइंट्स आपको रजिस्टर में लिखना है। क्लियर? सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, राइट। तो मैं अभी यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आप ये पूरे पॉइंट्स पे एक बार फोकस कर सको। इसमें एक भी वर्ड हमने एनसीईआरटी से स्किप नहीं किया है। एच एंड एवरी पॉइंट इज कवर्ड एंड कंसीडर्ड। क्लियर?